Okay, so last class we saw about loopings. Okay, looping we have completed, and we solved some important problem using looping. Okay, loops and conditional statement. Okay. So today we are going to move on to the next important topic. This is also very important. Okay. Functions. Okay, functions are very important one. Okay, there are two types of functions we can have. One is user defined, okay, and system defined, okay, otherwise predefined function. Okay, predefined functions and user defined functions. Predefined functions are already the definition for that function is already given inside the कंपाइलर के अंदर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. वी कैन जस्ट यूज दोज functions. Okay, default ka some ready made functions are there. Okay, for example, suppose if I give int a is equals to 30, okay, I can simply use some function, that is printf. Okay, directly I can use these functions. Sin 30, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं दैट इज साइन ऑफ 30. ओके, डायरेक्टली साइन ऑफ 30 यहाँ पर दे सकते हैं. ओके, हियर यू विल प्रिंट परसेंटेज एफ. ओके, so directly you can print these values, but for that we have certain library functions that you have to include. Okay, so see, for printf scanf we are including this stdio.h, na? So if you wanted to use this inex, these mathematical functions are stored in directives header file called math.h. Okay, math.h. So these functions mathematical related functions are stored in these header files. What is there in the math.h? Okay, sin theta. So sin जो भी वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं वो वैल्यू फाइंड आउट करने का पूरा प्रोसीजर math.h में लिखा हुआ है. Okay, so the procedure which is needed to find out sin theta, okay, theta can be any value, that is stored in this math.h. even you can go for tan theta. Okay, जो भी mathematical function लिख रहे हैं, there is a definition which is written in math.h, that is called a ready-made function. Okay, these are called ready-made functions. रेडीमेड फंक्शंस में आपको उसका डेफिनेशन, हाउ टू प्रोसेस साइन 30 रहेगा तो उसको क्या प्रोसेस करना है, यू डोंट नीड टू राइट, यू विल सिंपली राइट द फंक्शन नेम, साइन इज द फंक्शन नेम, एंड देन वैल्यू, आपको जो वैल्यू पास करना है यू विल पास दैट वैल्यू, एंड इफ यू रन द प्रोग्राम इट विल प्रोड्यूस द वैल्यू. सी, इट इज प्रोड्यूसिंग द वैल्यू, साइन थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको प्रोड्यूस हो रहा है. Okay, what you have done, you have not done anything, but simply you have specified the name of that function and then you have given this value, parameter बोलते हैं. Okay, you are just simply giving the name of the function and then the value. Okay, but इसके अंदर sin theta का process जो रहेगा, how to find out the sin theta, okay, उसका जो procedure रहेगा already that procedure is written in this math.h. Okay, if you include this header file, automatically we can make use of these ready-made functions. Okay, these functions are called predefined function. You don't need to write any coding for this function, but it is already predefined inside the compiler. We just have to use it. Okay, एक ready-made function समान हम लोग use करेंगे. But there are some user-defined function by using okay,
Yep. Okay, so there are some user defined functions that is available. That is, you can define your own function. See, who has defined it? You have not done anything. But those who have designed the compiler, they have written the coding for this, and then they have stored that function inside this header file. But you can also define such function. Okay, so according to your requirements, you can also define such functions. Okay, that is called user defined functions. इसका definition compiler के अंदर नहीं होता है. Okay, इसका definition compiler के अंदर होगा, but the definition for this will not be available inside the compiler. Okay, so what is function? First of all, you should know what is function. Okay, the function is nothing but a group of statements. Okay, group of statements work together to perform a task. Sorry. ओके, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है? वी हैव सेट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. ओके, इट मे बी 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. एक टास्क कंप्लीट करने के लिए वी विल सेट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एंड देन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी गिवन नेम. एक नाम भी उसको दे देंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन. एक पर्टिकुलर टास्क को आपको परफॉर्म करना है, वो सबको एक ग्रुप में फॉर्म करके रख लेंगे, अदरवाइज एक ब्लॉक में फॉर्म करके रख सकते हैं, सो दैट इट विल सॉल्व वन पर्टिकुलर टास्क. ओके, सो दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी गिवन नेम, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन. ओके ओके, फंक्शंस को अभी कैसे यूज करना है वो हम लोग देखेंगे. ओके, देयर आर 3 parts that you should know. 3. Okay, in order to work with function, you should know 3 different things. Okay, 3 parts उसमें रहेगा. First of all, what I said, see, this one is a predefined function. मैंने आपको बोला function का एक नाम है और उसमें वैल्यू भी हम लोग पास कर रहे हैं ना. So इसका definition मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो आपको परफॉर्म करना है, दैट कोडिंग इज ऑलरेडी रिटर्न इन दिस math.h. ओके, फाइल के अंदर उसका फंक्शन लिखा हुआ है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. वो चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके, तो आप वो तो यहाँ पर math.h में ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके, सो आपने क्या किया है, sin 30 करके व्हाट यू हैव डन, you are just calling that function. Okay, already जो predefined function को using that name you are calling, and then whatever value you have to pass, that you are passing. Okay, so एक function को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, first of all you have to define a function. Okay, define a function. Define a function, otherwise you are setting a body of the function. पहले आपको बॉडी होना चाहिए. दैट इज, यहाँ पर मैंने जैसा बोला आपने sin 30 लिखा, सो sin 30 का वैल्यू कैलकुलेट करने का जो भी स्टेटमेंट्स था ना, ऑलरेडी दैट इज रिटर्न इन दिस हेडर फाइल. ओके, और किसी ने वो लिखा है. अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस आप खुद एक फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं, लाइक साइन समान आप यू आर गोइंग टू क्रिएट अ योर ओन फंक्शन. देन हु हैज टू डिफाइन द फंक्शन, दैट इज क्या क्या स्टेटमेंट उसमें परफॉर्म करना है, दैट यू विल राइट. ओके, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी बॉडी ऑफ द फंक्शन. ओके, सो आपने यहाँ पर math.h में there will be many functions, बहुत सारा functions रहेगा. ओके, सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? नो, सब कुछ तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. एग्जीक्यूट क्या होगा? सो whenever you are calling that function. ओके, साइन यहाँ पर डाल रहे तो साइन का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, साइन का फंक्शन कॉल हो रहा है. अभी आप कास्ट डालेंगे तो कास्ट के लिए भी एक फंक्शन होगा, दैट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड. और टैन डालेंगे तो टैन का भी एक फंक्शन होगा, दैट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड. सो
simply writing the definition will not execute the coding. If you wanted to execute the coding, you have to call this function. It is function का नाम लेकर आप उसको call कर रहे हैं, okay? And then whatever value it is required, you are passing that values also. So second thing you need is function call, okay? Function call. So function definition means if you are calling a function, what are the set of statement that is to be executed, and then function call क्यों कर रहे हैं? If you don't use the function call, the statements will be there, वो function तो रहेगा but it will not get executed. If you wanted to execute that function, you have to call the function. function को आपको call करना पड़ेगा, okay? Third important thing, user defined function में, okay, see, as I already said, the C compiler can understand only these keywords, okay? Keywords उसको समझ में आएगा, okay? ये सब keywords है, and then keywords and constants, वो सब उसको समझ में आएगा, okay? But it cannot understand what is A. That is why what we are doing, we are declaring a variable. Purpose of declaring a variable is a computer can understand int, computer can understand equal to, okay? It can understand C tokens, okay? Keywords and tokens it understands. But what is this variable name? This is a variable name that you have created, doesn't have any idea about it. So what you have to do, you have to declare the variable. So declaration में हमने क्या किया है? When you are declaring a variable, you are giving the information to the compiler, that is, I am going to use a variable name called A, and that is of this data type, and it is going to hold this value. So all these details we are sending it to the compiler so that the compiler can allocate a memory for this variable, okay? See, similarly आप देखो printf समझ में आता है, इसको ये symbol तो समझ में आएगा, this also it can understand, okay? ये भी उसको समझ में आएगा, alright, okay? But इसको ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर tan इसको समझ में आएगा क्योंकि it is a already predefined function, okay? But instead of tan, मैंने मेरा नाम मैंने लिख लिया, okay? Because I have created a function called Rupa, okay? This is a user defined function. That means I have defined a function called Rupa, okay? उसको मैं call कर रही हूँ, okay? If I am writing this, the compiler won't be able to understand this name because this name is not given in the compiler. उसका dictionary में इसका meaning है ही नहीं है, because this is the name that I have created, okay? So what you have to do, before using such user defined function, you have to declare the function, okay? function को declare करना पड़ेगा, since as you are declaring the variable ना, so you have to declare the function also. function का नाम क्या है, okay? और function के अंदर क्या क्या values पास करना है, मैं how I am passing 30, okay? एक ही पास कर रही हूँ, इसमें एक ही पास करना है कि दो पास करना है और तीन पास करना है, सो तीनों का डेटा टाइप क्या है, ओके? सो दो का इंटीजर है, तीसरा फ्लोटिंग है, ये सब कुछ उसका स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, ओके? नॉट ओनली दिस फंक्शन, name of the function, but what kind of a values you are going to pass, how many values you are going to pass, all these details you have to give the information to the compilers, okay? So that is called function definition, okay? Function definition, these are very important, okay? ये फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड देन फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा आपको, कॉल करेंगे तब भी वो एग्जीक्यूट होगा, ओके? जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, द थिंग विल बी देयर, ओके? फंक्शन तो रहेगा बट जब आप कॉल करेंगे वो फंक्शन को तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ओके? एंड देन फंक्शन को आपको डिक्लेयर भी करना है, ओके? डेफिनेशन नहीं है, डिक्लेयर, ओके? डिक्लेयर करना है. सो 3 steps you have to do. Okay,
ये तीनों स्टेप्स आपके प्रोग्राम में होना चाहिए इफ यू आर यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अभी हमने साइन यूज किया, साइन में तो आप बोल सकते हैं ओके डेफिनेशन, ये जो बॉडी ऑफ द फंक्शन कंपाइलर के अंदर है, here I am calling the function, why I am not declaring the value, because उसको declare करने का जरूरत नहीं है, because sign function is already predefined and the system knows about it. Okay, उसको declare करने का जरूरत नहीं है, but if I am using any other function, okay, sum भी लिखती हूँ, it can also be a function name. Okay, sum is a name that I have created which the system doesn't have any idea. So if you are creating a user defined function, you have to declare the function also. Okay, so 3 steps आपको रखना पड़ेगा. So first of all we will see how to define a function. Function को कैसे define करना है. Okay, so as I said, it is a set of statement which is given a particular name. एक नाम उसमें दिया हुआ है. See, main is also a function. ये भी एक function है. ओके, मेन में हमने क्या लिया, यहाँ पर int लिखा है, that is a return type. We are going to deal with this. Okay, so this is a return type and then main is the name of the function. main function का नाम है. ओके, और empty brackets दिया है, तो main is not accepting any values. ओके, उसके अंदर पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है. Okay, so similarly if you wanted to define a function, first of all उसका syntax आपको पता होना चाहिए. Okay, syntax आपको पता होना चाहिए. Okay, body of the function or define a function. How to do? First of all आपको return type. Okay, return type आपको स्पेसिफाई करना है, फिर फंक्शन का नेम आपको देना है और ब्रैकेट्स डाल दो, उसके अंदर आप पैरामीटर, ओके, पैरामीटर एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू कैन पास. ओके, सो एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो भी आप डाल सकते हैं. opening braces, closing braces. Inside this you can write any number of statement. Okay, any number of statements. So ये पूरा ब्लॉक आपने क्रिएट किया है और ब्लॉक का एक नाम भी दे दिया है, that is going to be the function name. Okay, ये पूरा ब्लॉक का आपने एक नाम दे दिया है. This is the function name that you are giving. Okay, what is the purpose of using this block? It is going to do a particular task. एक particular task perform करने के लिए जो जो चाहिए वो पूरा आपने यहाँ पर लिख के रखा. Okay, see, this is a separate function. ये function अलग है, आपका main function अलग होगा. This is our main function. As I said, your execution will start from here and then यहाँ से end हो जाता है. इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वही आपका एग्जीक्यूट होगा. ओके, इसके बाहर वाला कुछ भी नहीं होगा. कंपाइलेशन बिगिनिंग से होगा. योर प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, बट एग्जीक्यूट जब करेंगे वो यहाँ से ओपनिंग से यहाँ क्लोजिंग, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली whenever you are creating such a function, मेन के लिए एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट होता है और मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल आपने यूज किया है, ये हो सकता है और साइन इज अ फंक्शन नेम, ये सब उसके अंदर रहेगा. ओके, द मेमोरी विच इज क्रिएटेड फॉर मेन विल हैव द स्पेस फॉर दिस वेरिएबल, ये एंड देन वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए भी वहां पर एक स्पेस क्रिएट होगा. ओके, Similarly, whenever you are creating a function, user defined function जब आप create करते हैं, a separate memory is created for this. Okay, memory उसके लिए भी अलग memory, okay, RAM में अलग memory create होगा. उसके अंदर all the variables that is declared inside this function. Okay, इसके अंदर जितने भी आपने variable use किया है, सभी variables के लिए भी space यहाँ पर allocate हो जाता है. Okay. सो फंक्शन जब भी आप क्रिएट करते हैं, फॉर एवरी फंक्शन यू विल गेट अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन. मेन का मेमोरी अलग रहेगा. ओके, जस्ट इमेजिन whenever a person is having a different house. Okay,
main is having a different house और this function is having a different house. Okay, उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है that will get the space here. Okay, so this is how you can define a function. Okay, this is first, this is your syntax. Okay, ये पैरामीटर क्यों यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं? What is this parameter? Okay, तो parameters are nothing but a variable. Okay, variable, these are the parameters are nothing but a variable which is passed from the main program or the calling, जो call करता है. Okay, suppose if I'm sending one message. Okay, if suppose I'm sending one message. ओके आपको सिर्फ मैंने होमवर्क दे दिया. ओके ये करो करके मैंने बोल दिया, आप लोग कर रहे हैं. देयर इज नो कम्युनिकेशन. मैंने सिर्फ बोला आप होमवर्क करो. ओके देयर इज नो कम्युनिकेशन. बट सपोज मैंने आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया. ओके प्राइम नंबर का प्रोग्राम कल का था असाइनमेंट. सो मैंने क्या किया है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपको दिया. Something I have communicated. It is not only you do that work. I have not done that. Okay, you do something means आप कुछ भी कर सकते हैं. Okay, there is no communication. But मैंने क्या किया है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा and then I shared it with you. Okay, so what you are going to do? So जो डाटा मैंने दिया है उसको रख के आप लोग आपको असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे. Okay, similarly suppose this main is calling that function. Okay, ये function को कोई call कर रहा है. Okay, during that calling it wanted to provide some details along with that. Okay, सिर्फ काम करो ऐसा नहीं बोला, but along with that it wanted to give some values to you so that you can use those values. Okay, so वो कैसे पास ऑन करना है? Through the parameters. Parameters through हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. दिस इज अ फंक्शन है ना. somebody will call this function, called one and calling function. Okay, called one is, calling function is passing some values to the called one. कैसे पास कर सकते हैं? थ्रू द पैरामीटर. ओके वन वे कम्युनिकेशन हो गया है. ओके सो मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर का आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है. Okay, so आपने क्या किया है? You have used my parameters and then you have executed using online compiler. और आपने क्या किया है? असाइनमेंट को सबमिट फिर से मेरे पास दिए. That is communication, two-way communicate हो रहा है. Right? I have given some material. You use those material to solve your problem, and again you are giving that result back to me. ओके सो रिजल्ट बैक कैसे करना है? यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज पूरा दे दिया है. यूजिंग दीज वैल्यूज यू हैव परफॉर्म्ड सम ऑपरेशन, यू हैव परफॉर्म्ड सम टास्क. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क यू मे गेट वन रिजल्ट. ओके इसमें कुछ रिजल्ट आएगा. सो यू वांटेड टू सेंड दिस रिजल्ट बैक टू द कॉल्ड फंक्शन. जो आपको कॉल किया है वो फंक्शन को आपको वैल्यू फिर से पास ऑन करना है. देन थ्रू दैट रिटर्न वैल्यू यू कैन सेंड द रिजल्ट बैक. ओके समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आर दीज? ओके दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. ओके somebody else is going to call this function. ओके जो भी कॉल कर रहा है if it wanted to pass on some values, okay, so that you can do all these processing. This is done by using the parameter. Okay, after completing these tasks, if I again wanted to send the result back, okay, फिर से मुझे result को calling program के लिए send करना है through the return type. I can do this. Okay, so these are the different parts, right? Okay, second is function call. function को कैसे call करना है? Okay, so function call करने के लिए you can simply use the function name of the function. आपको simply name of the function आपको use करना पड़ेगा. this is a statement. okay, function का नाम आप लिखो और जितने भी पैरामीटर उसमें था वही पैरामीटर, okay, वही पैरामीटर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा. okay, same order.
ओके, सपोज आपने ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ पर पास किया है, तो फंक्शन नेम जब व्हेन यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन you have to use the same order. फर्स्ट वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वैल्यू बी, थर्ड वैल्यू सी एंड फोर्थ वैल्यू डी. Okay, so simply by using the function name you can call. Okay, third one is nothing. फंक्शन को डिक्लेयर करना है. डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो वैसे ही है. तो अनदर नेम फॉर दिस फंक्शन डिक्लेरेशन इज फंक्शन prototype. Function prototype. Okay, so another name for function declaration is function prototype. So how to do this, इसमें कुछ confusion होने का जरूरत नहीं है. Prototype is nothing but declaration of a function. Otherwise we are just giving the structure. Okay, we are just specifying the structure to the compiler, that is so and so function name I am using, and my function is going to accept this is a parameter, these are the parameters, and whether I am going to communicate back, I am going to return any value back or not, वो सब details को आपको लिखना है. ओके, तो आप क्या करो, सिंपल है, ये जो फंक्शन को डिफाइन किया है ना, उसको कॉपी कर दो, उसको पेस्ट कर दो और सेमीकोलन डाल देना. सो दिस इज नथिंग बट वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द compiler, that is this is my function name and it is going to have 3 parameters. वो यही order होगा, first, second, third parameter, and then it is going to return a value or not. Okay, return value हो रहा है तो return value को type यहाँ पर specify करना है. Okay, so इसमें किसी को doubt है क्या? अभी एक example देखेंगे so that you can understand. सर अभी एक सिंपल प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डू. सी मुझे फंक्शंस तो चाहिए, आई वांटेड टू डिफाइन अ फंक्शन, बट क्या काम करने के लिए? सो आई वांटेड टू राइट अ फंक्शन टू ऐड 3 वैल्यूज. ओके, 3 वैल्यूज को ऐड करना है, उसके लिए मुझे फंक्शन लिखना है. ओके, ये सिंपल प्रोग्राम है. दैट इज मेरा पर्पस क्या है, ये जो बॉडी लिखने का पर्पस क्या है? 3 वैल्यूज को मुझे ऐड करना है. ओके, एडिशन करने के लिए, और एवरेज, ऐड एंड फाइंड द एवरेज, ऐड 3 वैल्यूज एंड फाइंड एवरेज. ओके, एवरेज फाइंड आउट करना है. सो पर्पस मुझे अभी मिल गया है. ओके, इनिशियली व्हाट आई सेड, साइन थीटा को फाइंड आउट करना है, तो उसको जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है. अभी मेरा पर्पस क्या है? मुझे 3 वैल्यूज लेना है, तीनों वैल्यूज को ऐड करना है और उसका एवरेज फाइंड आउट करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन को बॉडी डिफाइन करने वाली हूँ, तो रिटर्न टाइप तो छोड़ देना. यहाँ पर फंक्शन का नाम, सिंस आई एम कैलकुलेटिंग एवरेज, सो थोड़ा सा सिमिलर नाम मैं रख सकती हूँ, AVG. ओके, एवरेज रख लेती हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी माय फंक्शन नेम. ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय फंक्शन नेम. ओके, मैंने ब्रैकेट्स यूज कर लिया. ओके, ब्रैकेट्स में दीज पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. ओके, मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है तो मुझे करना है. ओके, तो मुझे कुछ कम्युनिकेट नहीं करना है. ओके, मुझे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना है. ओके, और रिटर्न टाइप क्या है? मुझे रिटर्न भी कुछ नहीं करना है. ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिटेल्स फ्रॉम मी एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेंड एनी डिटेल्स. मैंने सिर्फ आपको करा होमवर्क लिखो बोल दिया. Okay, I'm not providing any data for you and you are doing your homework and you are not again submitting it back to me. Okay, ऐसा सोच लेना. So nothing you are sending back means यहाँ पर void लिखो. Void is a data type which is used when you are not returning any value. Okay, body यहाँ पर हो गया है. So you are not accepting any parameter and you are not returning any value. So what is our purpose?
our purpose is to add 3 values and find the average. Okay, मुझे अभी 3 values का जरूरत पड़ने वाला है because I wanted to add this value. Okay, so 3 values A, B, C, तीनों value को मैंने declare कर दिया. ओके सो इसको स्कैनअप से भी वैल्यूज ले सकते हैं. जस्ट टू मेक इट सिंपल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस डिफॉल्ट वैल्यू हियर इट्सेल्फ 3, 5 and then 7. Okay, see you can write, you can get the values using scanf also. scanf से भी आप लोग values ले सकते हैं. that is a better method. ओके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दिया. ओके नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज को मुझे ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी. सो ऐड करके मुझे इसको भी सेव कहीं ना कहीं करना है ना. यस इज इक्वल्स टू ये. ओके सो इसको भी आप डिक्लेयर कर लेना. ये इसको मैंने डिक्लेयर कर लिया. देन एवरेज फाइंड आउट करना आपको तो पता ही है. ओके ए बी G is a variable, so don't keep the same name. Okay, यहाँ पर average है नहीं, यहाँ पर पूरा average नहीं लिख सकते हैं. So function का नाम, variable का नाम same नहीं होना है. Okay, avg is equals to yes divided by 3. Okay, I have got an answer. Okay, ये हो गया है. This is my definition. So float में मैं उसको declare करूँगी because मुझे float में answer चाहिए. Okay, a B, G. So this is how I can define a function. मेरा body ऐसा define कर सकती हूँ. So first of all you should know why you are using the function. So keep the name as per the problem you are using. Okay, then you decide whether you are getting any values from the calling portion. No. Okay, whether you are going to send the result back to the calling function वो भी no है तो void लिख लेंगे. ओके सो इसको कैसे कॉल करेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट मेरा हुआ है. इसको हाउ टू कॉल दिस फंक्शन, एज आई सेड यूज द फंक्शन नेम. व्हाट इज माय फंक्शन नेम, एवरेज. और पैरामीटर रहेगा तो पैरामीटर, नहीं है तो सिंपली ओके सिर्फ फंक्शन का नाम यूज करो. पैरामीटर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना. दिस इज द फंक्शन कॉल. सो आई एम नॉट सेंडिंग एनी वैल्यूज टू योर पोर्शन. ये पूरा आपका है. ओके दिस इज योर पोर्शन and this is my portion, so I am not sending any values to you. So simply वो नाम लिखो, हो गया. Okay, but average is a name which is given by me. Okay, मैंने ये नाम दिया है. कंप्यूटर के कंपाइलर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. So what you have to do, you have to define the prototype. ओके कंपाइलर को इंफॉर्मेशन आपको देना है. सो एवरेज नाम का मैंने एक फंक्शन यूज किया है वेयर दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू. ओके वो इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया है एंड देन यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर. दैट इज द डिफरेंस. हियर डोंट पुट अ सेमीकोलन. इफ यू आर पुटिंग अ सेमीकोलन ओवर हियर योर फंक्शन एंड्स हियर. ये इसका नीचे का एग्जीक्यूट, this will not be considered as a block of this function. Okay, so don't never put this semicolon over here. Okay, but prototype में आपने prototype इतना information दे के आपने डाल दिया है. So these are the 3 steps that involves. Okay, first आपको body define करना है. body define करने में आपका क्या क्या है, you have to set a name of the function और parameter आप कुछ ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं और return कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. That's it. Okay, this is the first type of a function. First type of function where no parameter भी नहीं है, no return type. Okay, no parameter and no return type. This is our first type of function. Okay, let's incorporate this. इसको हम लोग करके देखते हैं ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है. ओके सो व्हाट आई हैव टू डू, ये जो फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और मेन इज अ डिफरेंट प्रोग्राम. ओके मेन, दिस इज अ मेन फंक्शन. ओके आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ तक होगा. ओके सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एवरेज को यहाँ पर करो या तो फिर
ओके और नीचे कर लो, चलेगा, कहीं पे भी करेंगे। ओके सो आई हैव क्रिएटेड अलोंग विद दिस मेन, मैंने मेरा कुछ एक फंक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया। मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, 3 वैल्यू को ले रहा है, उसका सम कैलकुलेट कर रहा है, एवरेज, और प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ एवरेज, एवरेज ऑफ द नंबर इज ए बी जी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ कमा ए बी जी। ओके एवरेज यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है। ओके ये सब मेरा, ये आपने ये फंक्शन आपने लिखा। ओके बट मैंने आपको कुछ भी सेंड नहीं किया। ओके आई हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू। सो मेरा पार्ट क्या है, आई एम द मेन फंक्शन। ओके मैं मेन फंक्शन हूँ, आप लोग एवरेज फंक्शन हो। सो मेन इज आई एम ओनली कॉलिंग यू, मैंने आपको कॉल किया। ओके तो मुझे कुछ वेरिएबल का लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू, आई एम इन मेन, आई एम इन मेन, आई एम इन मेन, सिर्फ वो प्रिंट कर लेंगे। देन इफ यू रन दिस प्रोग्राम नथिंग विल बी प्रिंटेड। ओके ये जो हम लोग इसको रन करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा, कंपाइलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, जब रन होगा तब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। ओके ऐसे सेट एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओपनिंग ब्रेस एंड देन क्लोजिंग ब्रेस, इसके नीचे ऊपर जो रहेगा वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको एग्जीक्यूट करना है तो मुझे उसको कॉल करना, आप लोग खुद ही होमवर्क थोड़ी करेंगे, मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा। सो करो करके, सो मैंने क्या बोला, फंक्शन को मैंने नाम से कॉल कर लिया, बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी डाटा टू यू, ये भी हो गया है। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई सेड, उसको फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ओके फंक्शन को वेरिएबल समान यहाँ पे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, वो रीजन हम लोग देखेंगे। ओके वॉइड एवरेज, ओके एंड सेमीकोलन। सो 3 पार्ट यहाँ पर आ गया है, डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन बॉडी, तीनों चीज यहाँ पर आ गया है। सो यू हैव declared, defined the function, you are calling the function and you are declaring the function. Okay तीनों चीज है, तो अभी रन करते हैं। See I am in main, okay main में आ गया है, then average 5.0। okay इसके आगे बाद में फिर से मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, ये कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होकर वापस आता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके न्यू लाइन, न्यू लाइन। So if I again run this program, see I am in main आया, so the statement was executed। okay उसके बाद में आपने फंक्शन को कॉल किया है, तो what happened, the control is transferred from here this statement to this function body। साइन ऑफ जैसे कैलकुलेट किया है ना वैसे ही है। ओके साइन ऑफ के लिए कंपाइलर के math.h में उसका फंक्शन था, बट आपका एवरेज फंक्शन आपका प्रोग्राम फाइल में ही है, तो इट विल फाइंड आउट दिस वन, ये पूरा प्रिंट हो रहा है ना, एवरेज इज इक्वल्स टू 5.0, वो भी प्रिंट हो रहा है। एंड अगेन वंस इट कंप्लीट्स इट्स प्रोग्राम, कंप्लीट्स इट्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, ओके अगेन द कंट्रोल विल ट्रांसफर बैक टू द सेम लाइन, जहां से कॉल किया है वहां पर ही आएगा। okay after that it will execute the next statement, that is why I am in main again आ रहा है। okay again यहाँ पे आ रहा है। सो कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके इनिशियली आई एम इन मेन था, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर आप लोग फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स वेर एग्जीक्यूटेड, यू हैव just printed the value also, and then after executing the function you will go back to the same line where you have been called। okay और उसके बाद में next line execute करेंगे। so I am in main again। okay control यहाँ से वापस ट्रांसफर होकर यहाँ से एंड हो जाता है। this is the first type of function where I am the calling function, you are the called function। average is a called function, main is a calling function।
okay, where the calling function does not provide any value, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो रहा तो empty है. And the called function, आप लोग भी मुझे कुछ वापस नहीं देने वाले हैं, so मैंने भी void लिख लिया है. So this is your first type of function. First type of function. Yeah. Okay. First type of function. Okay. So like that, here I have calculated average. आपको अभी और क्या कर सकते हैं, आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, सेम फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. सो इंस्टेड ऑफ एवरेज मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, फैक्टोरियल. You can keep any name, okay, it's not necessary पूरा ऐसा ही रखना है any name, but related नाम रखेंगे तो वो easy रहेगा. Okay, factorial, यहाँ पर भी मैंने decide किया I am not going to get any value from the main. Okay, तो मैंने parameter ऐसे empty रख दिया है, and then I am not going to produce a result back to this main, वो भी मैंने void रख लिया है. So what are the things I required, मुझे एक variable I चाहिए और उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए f चाहिए मुझे. ओके, ये मैंने कर लिया. ओके, सो देन व्हाट आई हैव टू डू, एक फॉर लूप मुझे लगने वाला है, i इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज लेस देन ये n. ओके, लेस देन और इक्वल टू n. सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, प्रिंट f. ओके, फैक्टोरियल किसको फाइंड आउट करना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना. तो एक वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, एंटर द वैल्यू. वैल्यू मैंने एंटर कर दिया है. फिर स्कैन एफ में एक वैल्यू मुझे अभी लेना है. कौन सा वैल्यू, n का वैल्यू. ओके, परसेंटेज d कमा एम्परसेंड n. ओके, तो एक वैल्यू मैंने यहाँ पर ले लिया. सो फॉर लूप में आपको 1 से लेकर n तक आपको लूप कंटिन्यू करना पड़ेगा, i प्लस प्लस. ओके मैम, एंटर की स्पेलिंग, सॉरी एंटर की स्पेलिंग, एंटर द ओके वैल्यू. ओके, वो चलता है यार, दैट इज ओनली ये है ना, स्ट्रिंग है ना. ओके, एंटर द वैल्यू. ओके, ये हो गया फॉर लूप. इसके अंदर आकर मुझे क्या लॉजिक लिखना है, f इज इक्वल्स टू f इंटू, दैट्स व्हाट वी हैव डन, है ना. सिंगल कोडिंग मैंने कर लिया है. तो यहाँ पर भी आपको फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज परसेंटेज d लिखेंगे, है ना. यहाँ तो वो d ही रहेगा, इंटीजर ही रहेगा. सो f लिख सकते हैं. ओके, सो i डिक्लेयर किया है, f डिक्लेयर किया है, n को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, है ना. 3 वेरिएबल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो यहाँ पर आपको उसका नाम फैक्टोरियल करके चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट. फैक्टोरियल चेंज करना है, और यहाँ पर भी मुझे फैक्टोरियल चेंज करना है, दैट्स इट. जस्ट थिंक, मैंने आपको बोला फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेना, जस्ट मैंने बोला कौन सा नंबर का फाइंड आउट करना है, नथिंग आई हैव प्रोवाइडेड. क्या करना है उतना मैंने बता दिया. ओके, फैक्टोरियल फाइंड आउट करो. ओके, आई हैव नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी वैल्यू. ओके, तो आपने खुद ही वैल्यू लिया, n का वैल्यू, और खुद ही एग्जीक्यूट किया, खुद ही डिस्प्ले भी कर दिया है, एंड देन बस काम हो गया है. एंड यू आर नॉट सेंडिंग द वैल्यूज बैक टू मी, मुझे पता भी नहीं है, आपको काम दे दिया, बस हो गया. ओके, आई डोंट बॉदर व्हाट वैल्यू यू हैव गॉट. ओके, तो आप फिर से मेन में आ गए हैं. ओके, एंटर द वैल्यू 5 फैक्टोरियल का. See, the factorial of a given number is 120. So I am in main again. So nothing, you are not communicating. This is first type of a function where I am not passing any value. I am not returning any value back to the calling function.
ओके इसमें क्या ड्रॉबैक है, सी देयर इज नो कम्युनिकेशन। ओके इसने काम दिया, काम खत्म हुआ है क्या, क्या रिजल्ट आया उसको भी नहीं पता, एंड यू आर ऑल्सो नॉट सेंडिंग द रिजल्ट बैक टू दिस मेन फंक्शन। इन केस ओके मुझे ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करो मैंने बोल दिया है, और यहाँ पर मुझे ये फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे लग रहा है। ओके सो आई वांट द रिजल्ट 120 जो रिजल्ट आया ना, तो वो रिजल्ट यहाँ पर मुझे रिमाइनिंग स्टेटमेंट्स में आई एम गोइंग टू यूज दोस वैल्यूज। तब कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है, ओके यहाँ पर कैसे आएगा, नहीं आएगा। Okay, this is my function. What I said, whenever a function is created, a separate memory is separate memory, okay, memory create होता है। okay, separate memory क्रिएट होगा, मेन के लिए भी सेपरेट मेमोरी क्रिएट होता है। ओके इसके अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, जस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये आपको समझ में नहीं आता है तो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, अ स्पेशल मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर दिस फैक्टोरियल function. Okay so then what are the variable that you have declared, that variables will be provided with the memory. Okay so इसके अंदर इतने सारे variables का memory provide हुआ है, but इसके अंदर सिर्फ इसमें फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करने का एक प्रोविजन दिया है। ओके फैक्टोरियल का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ओके बट इसके अंदर का वेरिएबल अलग है। ओके सो इट इज हैविंग अ सेपरेट, जस्ट सोच लेना, दिस इज अ सेपरेट रूम एंड दिस इज अ सेपरेट रूम। ओके ये रूम में जो आइटम्स है वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। ओके और ये रूम में जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। ओके दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अ फंक्शन। सपोज ओके मैंने डिसाइड किया चलो मुझे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड आउट करो, मैंने आपको बोला ओके आई हैव सेड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर फर्स्ट में। नाउ आई एम सेइंग you find out factorial for the number that I am going to give. मैं जो नंबर दूंगी तो उसका फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मैंने ये चीज मेरे हाथ में ले लिया। ओके आई विल प्रोवाइड द वैल्यू, यू फाइंड आउट द फैक्टोरियल, मैंने यहाँ लगा दिया। ओके सो n वैल्यू अभी मैं आई विल टेक ओके n वैल्यू, सो यहाँ पर int I मैं यहाँ पर दूंगी। सो दिस इज गोइंग टू गेट अ वेरिएबल I, यहाँ पर I के लिए सॉरी n के लिए सॉरी n इज अ वेरिएबल ना, सो n के लिए मेमोरी अलोकेट होगा। सो दिस मेमोरी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ओके ये हो जाएगा। ओके सो मैंने यहाँ पर कॉल तो कर लिया फैक्टोरियल, बट किसके लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, n के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द वे आई कैन कम्युनिकेट विथ यू यूजिंग द पैरामीटर, मैंने n यहाँ पर लिख दिया। ओके मे बी मेरा n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, n इज इक्वल्स टू 5। व्हाट आई एम डूइंग, n वेरिएबल यहाँ लगा दिया है, तो व्हाट आई एम डूइंग n के अंदर का जो वैल्यू है ना वो वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ। ओके the value which is stored under inside n I am passing this value. okay तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कुछ एक सामान में भी आई एम गिविंग 1 पेन। ओके एक रूम में पेन है, वो पेन को आपके रूम में मैं दे रही हूँ, तो पेन को होल्ड करने के लिए एक स्पेस चाहिए ना। ओके मैंने जो वैल्यू दिया है ओके वो वैल्यू को लेने के लिए यू नीड सम वेरिएबल हियर। ओके सो हियर आपको वो पैरामीटर वैल्यू, मैंने जो n पास किया ना वो n पास किया, वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो वैल्यू को कॉपी करने के लिए आपको एक और वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज दिस n इज बिलोंग्स टू मी। ओके मैंने आपको चाय दिया तो मेरे ग्लास में से आपको ग्लास में डाल दिया, सो यू नीड अ ग्लास। ओके सो यहाँ पर एक वेरिएबल आपको लगने वाला है वो द सेम डेटा टाइप। n का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके यहाँ पर इंटीजर पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा सेम इंटीजर का।
Okay, so here I am going to use another name called n1. Okay, n भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने यहाँ पर n1 रख दिया. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो 5 वैल्यू है ना यहाँ पर स्टोर हो रहा है. सो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर भी इंट डालते हैं. यहाँ इंट डालेंगे तो मल्टीपल डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक बार बता दिया, इधर क्यों फिर से आप बता रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एरर मैसेज. डोंट पुट द डेटा टाइप हियर, बट हियर since you are catching this value, okay, this value is passed on this to this value. Okay, आपने n1 में डाला है. So here you have to define the data type along with the variable. Okay, यहाँ पर आपको data type देना पड़ेगा. So it is an integer type of a value. Okay, so यहाँ पर n का ज़रूरत नहीं है. So here you have one more variable. This is called temporary variable. n1 is a temporary variable. Just to hold the value 5. 5 को लेने के लिए मुझे एक variable चाहिए था. That is why I have declared. So this is a temporary variable. Okay. So temporary variable के अंदर मैंने n1 के अंदर 5 रखा है. So I have done all the work. Okay, that's it. So one way communication I have done. So okay, not only I have given the work, but I have specifically given the value. Okay, I am passing on the value. Okay, ये process कैसा करना है, it is your job. Okay, क्या करना है, it is up to you. Factorial मैंने डाला है, आपने Fibonacci series किया है तो I don't bother. Okay, ये आपका हाथ में है, मैंने काम दे दिया. बट स्पेसिफिकली मैंने दिया है, एक वैल्यू मैंने पास ऑन किया है. यू आर टेकिंग दैट वैल्यू एंड देन यू आर डूइंग दिस वर्क. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइप. ओके, वेयर आई हैव, ओके, where I am using parameter with parameter and without return type. Okay, using second type with parameter and without return type. Okay, with parameter and without return type. Parameter तो पास कर रही है, one way communication. I am communicating with you and you are executing it, but क्या execute हुआ वो वापस मुझे नहीं मिला. ओके, सो ये इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं. दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप. ओके, सो एंटर द वैल्यू. इट इज आस्किंग 5 मैंने डाल दिया है. सी फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज 120. आई एम इन मेन अगेन. ये पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस यहाँ पर जा रहा है. ओके, ओके, बट एज आई ऑलरेडी सेड, अभी मुझे फिर से ये जो 120 आपने जो कैलकुलेट किया है ना, वो यहाँ पर प्रिंट करना है. ओके, आई जस्ट वांटेड टू प्रिंट दिस वैल्यू. ओके, ये द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर मुझे यहाँ पर लग रहा है. ओके, तो अगेन आई वांटेड टू प्रिंट. अभी हम लोग रन करेंगे ना, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एरर मैसेज. एफ यानी उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या वेरिएबल है, ओनली एन इज देयर. एंड व्हाट यू आर डूइंग, एफ को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं. क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, दिस एफ बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. okay, this is local to this block. So I and f is a local variable to this factorial function and n is local variable to this main function. That is why main में आने के बाद में if I try to use what result you have got, this is going to produce an error message. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I must get the result back from you. तुमसे वापस मुझे रिजल्ट को लेना पड़ेगा. ओके, दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन. आई एम ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ यू, यू आर डूइंग समवॉट एंड अगेन यू आर गिविंग बैक द वैल्यूज टू मी. ओके, तो इसको कैसे करना है, सी यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, रिटर्न टाइप वॉइड रखो इफ आई एम नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. बट मुझे अभी रिटर्न करना है
तो मुझे रिटर्न डेटा टाइप, जो कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है, एफ का वैल्यू रिटर्न करना है, दैट इज अ रिजल्ट ना, एफ का वैल्यू मुझे रिटर्न करना है। सो एफ का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। सो यहाँ पर void निकाल दो, int डाल दो, बस। ओके ऐसा डालते हैं, दैट मीन्स दिस फैक्टोरियल फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ इंटीजर टाइप ऑफ अ वैल्यू। सपोज ये फ्लोटिंग रहेगा तो FLOAT लिखना पड़ेगा आपको। ओके सो आई एम गोइंग टू रिमूव द स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू, इंस्टेड आई एम गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। भैया एक मिनट आई, वन सेक, क्या हुआ भैया? मैं क्लास में हूँ ना, मैं क्लास में। Okay, so I wanted to return, okay, return, oh sorry, oh my god, return this value back to the main program। क्या वैल्यू मुझे रिटर्न करना है, f को मुझे रिटर्न करना है, राइट। So this is my structure, that is you are going to get value from me and you are going to return a value to me, जो कि return is a keyword। okay, आपको कुछ भी रिटर्न करना है using the return keyword you can do it। okay, so f को आपको रिटर्न करना है। so यहाँ पर आते हैं, तो मैंने तो पास कर दिया तो आपने ले लिया यहाँ से। आप जब रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न वैल्यू को भी मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा ना। ओके जब भी आप वैल्यू को रिटर्न करते हैं, हमेशा फंक्शन जहां से कॉल होता है, आई सेड ना, व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द फंक्शन इट विल गो बैक टू द सेम स्टेटमेंट वेयर यू हैव बीन कॉल्ड। सो यहाँ पर ही वापस आएगा। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड में, ओके इसका लेफ्ट हैंड साइड में FACT, ओके दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल। आई एम गोइंग टू यूज अनदर वेरिएबल। आप जो दे रहे हैं उसको लेने के लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए। सो आई हैव क्रिएटेड एन अनदर वेरिएबल कॉल्ड फैक्ट। ओके फैक्ट में 120 स्टोर होगा, सो दैट यहाँ पे भी उसको मैं प्रिंट कर रही हूँ। ओके सो हियर यू विल डिक्लेयर इंट in कमा FACT फैक्ट। अभी हम लोग रन करेंगे कि क्या एरर आ रहा है। ओके सी यहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किया, सी हियर वी हैव नॉट मेड एनी चेंज। ओके तो आपको उसको डेटा टाइप क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोटोटाइप इंट व्हाट आई सेड एज इट इज, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर लो। ओके इसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। That is you are giving the structure, that is my function name is factorial and it is returning int and it is passing an integer type of a parameter. Let's run this program. See now it is working. Okay again you give the 5 value. See the result, I am in May। ओके एंटर द वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, एंटर द वैल्यू यहाँ ही है। ओके एंटर द वैल्यू, आई एम गिविंग द वैल्यू। ओके 5 मैंने दिया। ओके सो ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद में ये पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद में ओके फिर से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, फैक्ट में मैंने स्टोर कर दिया है। आई एम इन मेन अगेन, मेन में आकर ये फंक्शन वैल्यू को, जो रिजल्टेंट वैल्यू है ना, उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो आई एम द वन हु इज गिविंग द वैल्यू 5, so I am the one who is printing the value also. So I am giving the value two-way communication. I am giving and also getting back the result. Okay, so this is called third type. Okay, third type with parameter and with a return type. Okay, parameter भी है और return type भी है. Okay, so ये जो है ना प्रोटोटाइप, दिस इज अ प्रोटोटाइप ना। प्रोटोटाइप में this variable name is an optional one. Okay, if you wanted to write a variable name you can write, otherwise सिर्फ आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बताना है ना,
ओके आप वेरिएबल नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. व्हाट यू आर डूइंग, आवर पर्पस इज you are just mentioning the structure. It is going to pass an integer type of a value, it is going to return an integer type of a value, and this one is a function name. Okay, so this is your third type of a function. If you know this, easily you can perform any practicals using function. Okay, right? So you can easily perform any program. Factorial का रहेगा, Fibonacci series का रहेगा, prime number का रहेगा. First of all, you have to decide what type of a function you wanted to use. With parameter with return type, or with parameter without return type, or without parameter without return type. You have to decide. और parameter आपको पास करना है तो कौन सा parameter पास करना है. Okay, what value you wanted to provide. Factorial मैंने यहाँ पर decide किया है. Factorial आप calculate करो, but मेरे जो value के लिए. Okay, whatever value I am going to provide, that for that value you find out the factorial of a given number. Okay, समझ में आ रहा? Able to follow this? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सिर के ऊपर जा रहा है. एक बार आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. ओके, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. Can we do one more program in this functions का? Can we do one more program? Yes, ma'am. Okay, see. So now we are going to do add 3 values. Okay, 3 value को हम लोग सिर्फ add करने वाले हैं. Okay, average भी find out नहीं करेंगे. Okay, so 3 values of different data type. Okay, so which type of function you want to do? First one करेंगे, first type करेंगे क्या second type क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टाइप कर लेते हैं. ओके, सो ये पूरा मैं रिमूव कर रही हूँ. ओके, सो पहले मुझे नाम तो रखना है. ओके, एडिशन करना है तो ADD रख लेते क्या, एड रख लेंगे. दिस इज माय फंक्शन. ओके, फंक्शन का नाम मैंने रखा ADD. ओके, तो उसके अंदर मुझे पैरामीटर भी पास नहीं करना है, रिटर्न भी पास नहीं करना है. सो वाइड मैंने रख लिया. सो आई हैव डिसाइडेड टू यूज द फर्स्ट टाइप. ओके, फर्स्ट टाइप. Okay, where I am not passing any parameter, I am not returning any value. Okay, तो मुझे 3 value, 3 values of different data types. So मुझे क्या करना है, int ये रख लेती हूँ. ये भी 2 integer value और एक floating point value. Okay, C 3 different values हो गया है. Okay, तो मुझे अभी इसका वैल्यूज मुझे लेना है. ओके, प्रिंटफ से भी ले सकते हैं. सो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू ले रही हूँ, बट आप लोग ओके मैं स्कैनफ से ही ले लेती हूँ. सपोज इफ आई राइट अ प्रोग्राम ना, तो स्टूडेंट्स विल फॉलो द सेम थिंग. ओके, ऑलवेज इट इज बेटर टू इनपुट अ वैल्यू. ओके, एंटर 3 values. Okay, enter in one integer value. Enter integer value. Okay, तो यहाँ पर scanf 2 integer value ले सकती हूँ ना, %d %d. Okay, so ampersand a comma ampersand b, 2 वैल्यू मैंने लिया. ओके, एंटर 2 इंटीजर वैल्यू. ओके, सो सिमिलरली एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी मुझे चाहिए ना, थर्ड वैल्यू. सो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंटर अ फ्लोटिंग वैल्यू. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ओके, ओके, थर्ड नंबर मैंने C, राइट. C को मैंने ले लिया. ओके,
So input मैंने ले लिया, so it is 2 integer value and 1 floating value. Now I have to add the value. Okay, a plus b plus c, तीनों का मैंने ऐड किया है और उसको रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर एंड फ्लोटिंग, रियल अरिथमेटिक रियल वैल्यू और इंटीजर रहेगा तो ऑलवेज आपको रिजल्ट क्या रहेगा, रियल अरिथमेटिक विल बी परफॉर्म्ड. ओके, सो रिजल्ट मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया फ्लोटिंग में. ओके, रिजल्ट हो गया है. ओके, सो नथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम, यू आर नॉट गेटिंग, दिस इज योर ब्लॉक है ना, सो यू आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू फ्रॉम main function. Okay, so simply you can print the value, क्या है, the result is percentage d comma, यहाँ पे ये वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया. ओके, सो हियर सिंपली आई एम गोइंग टू प्रिंट इन मेन करके लिख लेती हूँ, सो दैट आपको पता होना चाहिए ना, इन मेन. ओके, फिर एक और कर लेती हूँ, अगेन इन मेन, सी जस्ट ना इसको रन करके देखो, इसको प्रोटोटाइप भी रखना पड़ेगा ना, कंट्रोल सी. ओके, प्रोटोटाइप रख दिया. सो अभी रन करेंगे ना, नथिंग विल बी प्रिंट. ये क्या हो रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल एंड देन दैट इज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. अगेन व्हाट्स अ प्रॉब्लम, ये भी इज एन इंटीजर टाइप. ओके, यहाँ पर फ्लोट होना चाहिए. सी ओके, इन मेन, अगेन इन मेन, नथिंग इज प्रिंटेड, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर. क्यों, आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया. ओके, सो आपका कंपाइल होता है ना, पूरा कंपाइल होता है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टू द लास्ट स्टेटमेंट, बट एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, यहाँ से लेकर एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गया है, ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया, यहाँ तक खत्म. ये पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ. अभी एग्जीक्यूट होना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा. Okay, so you will do only the work when I will call you. Okay, so main should call that function, then only it will execute. अभी मैंने क्या किया है, add function call किया. Okay, I am not passing any parameter and not getting any result back. Okay, now you run the program. Okay, enter. So in main आ गया है, enter to integer value. So 6 मैंने कर दिया है और 9 मैंने कर दिया. Okay, enter a floating point value. So 1.7. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट एंड अगेन इन मेन, ये भी हो गया है. ओके, ये पूरा यहाँ से प्रिंट होकर देन अगेन इन मेन. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ अ वैल्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ अ फंक्शन. ओके, ओके, राइट. ओके, सो इसको सेकेंड टाइप में करना है. अभी सेकेंड टाइप में मैं पैरामीटर पास करूंगी. सेकेंड टाइप में आई एम गोइंग टू पास अ पैरामीटर एंड विदाउट, है ना, विदाउट, मैंने पहले नहीं लिखा, विदाउट रिटर्न टाइप. पैरामीटर मेरे पास रहेगा और रिटर्न टाइप नहीं रहेगा. ओके, सो मैं पैरामीटर रखने वाली हूँ. पैरामीटर मीन्स यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है, आई कैन हैव ऑल दीज वैल्यूज इन मेन. सो जो मैं वैल्यू दूंगी उसी को आपका ऐड करना है. ओके, कंट्रोल एक्स मैंने कर लिया है और यहाँ पर आकर मैंने ओके एंटर टू नंबर यहाँ से ले रही हूँ. ये पूरा ए बी सी का वैल्यू पूरा यहाँ ले रही हूँ. सो वेयर आई एम सपोज टू डिक्लेयर इंट ए कमा बी एंड फ्लोट सी, यहाँ पर होना चाहिए. समझ में आ रहा,
क्योंकि मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दीज वैल्यूज फॉर विच यू आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स. ओके, सो वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर मुझे करना पड़ेगा. ओके, तो मैंने कर लिया है. सो यहाँ पर आपको पास ऑन करना है वैल्यूज को. क्या क्या वैल्यूज को? फर्स्ट इंटीजर है और सेकेंड भी इंटीजर है, थर्ड इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ये कमा बी का. सो डोंट पुट एनी डेटा टाइप हियर. ओके, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डिफाइंड. कंपाइलर को पता है ए बी सी मीन्स ए बी इज एन इंटीजर वैल्यू, सी इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ओके, अभी आपको लेना है. ओके, सो जो ऑर्डर में मैंने वैल्यूज प्रोवाइड किया है, इन द सेम ऑर्डर यू शुड कैच द वैल्यू ऑल्सो. ओके, तो इंट यहाँ पर मैंने a1 रखा. ओके, इंट मैंने यहाँ पर b1 रखा, कमा इंट मैंने यहाँ पर c. इंट नहीं है, c इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर. ओके, ऑर्डर को मेंटेन करना है. ओके, सो ये के अंदर का जो वैल्यू है यहाँ पर स्टोर होगा, बी का वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा, सी का वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा. ओके, सो वन मोर थिंग, सी जब भी आप लोग ऐसा वैल्यूज क्रिएट करते हैं ना, तो उसका एक टेम्पररी वेरिएबल, ये सब टेम्पररी वेरिएबल्स है. ओके, दैट बिलोंग्स टू दिस फंक्शन. दिस abc बिलोंग्स टू दिस फंक्शन. Okay, or this a1 b1 c1 belongs to this function. So you can keep the same name also. आप same name भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, दो घर में एक ही नाम का ना सेम नेम से दो बच्चे हो सकते हैं ना. So but this abc belongs to this particular block and this abc belongs to this particular function. So ये सब कुछ हम लोग रिमूव कर रहे हैं. सी का भी अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे से हमने ले लिया. सो ए बी सी ए कमा बी कमा सी. राइट, सो नाउ आई एम सिंपली एडिंग दिस वैल्यू. यहाँ पर जो भी वैल्यू मैंने दिया है उसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं. पहले क्या था, आपको फ्रीडम था, यू कैन टेक एनी वैल्यू, बट मैंने यहाँ पर वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है, उसी वैल्यू को नाउ दिस फंक्शन कैन वर्क. ओके, तो तीनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं. नाउ रिजल्ट इज इन योर हैंड. रिजल्ट आपको आ गया है. ओके, सो इसको मैंने कॉल कर लिया है ए बी सी. ओके, आई एम इन मेन. ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. यहाँ पर आपको क्या करना है, दिस थिंग. ओके, see, add is a function name. This function is going to pass integer type of value, second integer type of value, and then third float. Okay, it's ऐसा parameter यहाँ पर pass हो रहा. Order you have to maintain always. Okay, let's run this program. Okay, integer value 12. Okay, and then 4, and enter a floating point value 5.7. Okay, so now you are working only on this value that I am providing. Okay, so again in main आ गया है. Okay, so this is how you can just, हमको अभी बहुत सारा प्रोग्राम आता है. Okay, तो any program you can do it by using function also. Okay. ओके, अभी थर्ड टाइप आपको करना है. थर्ड टाइप में मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप. ओके, पैरामीटर के साथ और रिटर्न टाइप के साथ. ओके, मैंने तो वैल्यूज यहाँ पे पैरामीटर पास तो किया है, और ये वैल्यू जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट मुझे वापस चाहिए. So you are not supposed to print the result here. You can print also, but मुझे ये value यहाँ पे भी चाहिए. Okay, so what I can do, instead of going for this void मैं use नहीं करूँगी, but instead यहाँ पर return type मुझे लेना पड़ेगा, because I am going to return the value result back to the calling function. Okay. ओके, रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट. सो यहाँ पर भी मेरा फ्लोट हो जाएगा. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे फ्लोट हो जाएगा.
Okay, because it is returning some value. Okay, जब ये return हो रहा है, return कहाँ पर होगा? Directly calling portion, that line. It will come back to the same line. So I want another variable to catch the result. Okay, so मैंने आप result करके भी लिख सकते हैं, कोई issue नहीं है. मैंने separate नाम लिखा है. You can use the same name also, but both are totally different. यहाँ पर आप R लिखेंगे. Okay. So R should be a floating point value, okay, because you are returning the floating point, है ना. तो यहाँ पर जो वेरिएबल उसको कैच करेगा that should also be of floating point, वो floating में होना चाहिए. Then you can print the value. Enter two values 2,3. Okay, enter a floating point value 6.9. Okay, so the result is again in main, the result main में आकर आप लोग print कर रहे हैं, so that main can also utilize this value. Otherwise, since the result was a local variable to this function, it is not available to this main function. Okay, if you wanted to use a variable, okay, exchange the variable, then it is through the parameter you can pass, and through the return value you can get back the value. Okay, समझ में आया? Yes, ma'am. एक बार एक प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा. जस्ट एक्सपेरिमेंट करो घर में जाके, जस्ट एक्सपेरिमेंट. ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डालकर आप लोग एक्सपेरिमेंट करो. मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 इंटीजर वैल्यू डाला है ना, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डाला है. ओके, तो आप लोग यहाँ पर पहले फ्लोट डालकर देखो, सेकेंड फ्लोट डालकर देखो. दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर. फर्स्ट पैरामीटर विल बी, यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है ना, दैट विल बी मैच्ड विद द फर्स्ट पैरामीटर हियर. ओके, यहाँ पर भी फर्स्ट पैरामीटर यहाँ ही आएगा. ओके, सो दिस इज सेट टू बी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स. दिस इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. ओके, इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. Okay, the formal argument is a temporary value. So temporarily उसको hold करने के लिए we are using this as a placeholder. Okay, nothing else. Okay. Okay. So with this we can conclude today's class, I think. है ना? Continue करेंगे क्या या फिर कल continue करेंगे? कल करेंगे कंटिन्यू. Yes, okay, but you just perform these practicals. Okay, एक एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट में देते हैं, तो जो असाइनमेंट कंप्लीट करता है उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा. ओके, दिस इज इन योर कोर्स. दोज हु आर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, ऑलरेडी आई एम प्रोवाइडिंग द ना प्रोग्राम्स. आपको प्रोग्राम्स में दे ही रही हूँ, वो प्रोग्राम्स को आपको एग्जीक्यूट करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है. दोज हु आर कंप्लीटिंग ऑल द असाइनमेंट्स, ओके, तो उन्हीं को सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे. राइट, सो टुमारो अगेन लेट्स सी कल का कब हो सकता है वो देखते हैं. इफ इट इज पॉसिबल 1 o'clock सर से पूछकर 1 o'clock को लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. ओके, सो अटेंडेंस का लिंक आपको शेयर कर दूंगी.